لاہور میں نان سٹاپ بارشیں، مسلسل تیسرے روز شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ ڈیفنس موڑ، جوہر ٹاؤن، والٹن، سمن آباد سمیت شہر کے کئی سڑکوں پر پانی جمع رہا۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ تاج پور میں 156 اور مغل پورہ میں 131 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ستھرا پنجاب ٹیم اور واسا نے لاہور میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں نکاسی کا کام مکمل کر لیا۔ مال روڈ، کلب چوک، مین بلیوارڈ گلبرگ، لیبرٹی چوک کے علاقے کلیئر، بینک سٹاپ، کینچی سٹاپ اور فیروز پور روڈ پر بھی چند ہی گھنٹے میں نکاسی اب مکمل۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دھواں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، مانسون بارشوں کے ساتھ پانی کی نکاسی کا آپریشن تیز کر دیا گیا۔ انڈر پاسز، گلیاں، سڑکیں اور اہم شاہراہوں پر نکاسی اب جاری ہے۔ مانسون کا ہیوی سپیل، گجرانوالہ میں تیسرے روز بھی مسلسل بارش، گلیوں میں پانی جمع، قصور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیالکوٹ، ڈسکا اور گردنواہ میں بارش سے گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ رائیونڈ میں بھی گلیاں پانی سے بھری رہیں۔ شیخوپورہ اور مریدکے میں بھی بادل جم کر برسے، کل تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں حالیہ بارشوں سے حادثات، 21 شہری جاں بحق، 154 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مختلف شہروں میں چھتیں گرنے سے 15، کرنٹ لگنے سے 3 اور آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں کے باعث 38 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ پیٹرول 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ 1 لیٹر پیٹرول آج 327 روپے 12 پیسے کا ملے گا۔ ڈیزل کی آج کے لیے قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 3 روز میں ڈیزل 20 روپے 69 پیسے اور پیٹرول تقریباً 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ حوثیوں کا باب المندب میں 202 سعودی بحری جہازوں پر حملہ، جہازوں میں آگ لگ گئی، عملہ محفوظ رہا۔ سعودی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حملہ بحیرہ احمر میں کیا گیا۔ حوثیوں کا کہنا ہے آئل ٹینکرز کو بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش ہے۔ حوثیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان ان حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ سعودی عرب کو دھمکیاں دینا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان سفارتکاری اور مذاکرات کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ابنا ہرمز کے بعد باب المندب میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $88 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اماراتی خام تیل کی قیمت $92 فی بیرل سے زائد ریکارڈ۔ آبنا ہرمز کے بعد باب المندب میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ابنا ہرمز میں ایران کا ٹینکر پر حملہ، پاسداران انقلاب نے کہا دھماکے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ واقعے کے بعد دیگر 2 ٹینکرز واپس مڑ گئے۔ ایران کے ساتھ رابطے کے بغیر کوئی ٹینکر ابنا ہرمز سے نہیں گزر سکے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے عمانی ہم منصب کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ خطے کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ عمانی وزیر خارجہ کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں IMF حکام سے ملاقاتیں، زر مبادلہ کے ذخائر، ریکارڈ ترسیلات اور کرنٹ اکاؤنٹ کی بہتر صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی بینک کے چیئرمین سے ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مودی
हुकूमत के खिलाफ दिल्ली के बाद मुजाहिरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। नौजवान ताहाल सड़कों पर मौजूद। भारतीय फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवान मुतालबात के हक में डट गए। अदाकार सलमान खान भी भारत में तलबा के एहतजाज के हक में बोल पड़े। कहा, अफसोस है कि पुरअमन तहरीक पर तशद्दुद किया गया। गिलगित में आरजी झील टूटने से दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला आ गया। थोरदास के इलाके में पानी आबादी में दाखिल, घरों और ज़राई अराजी को नुकसान पहुंचा। सवात, मानसेहरा, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात, मानसेहरा, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। रेस्क्यू एहलकारों और आलात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सदर मुमलिकत की मानसून बारिशों के पेश नज़र हंगामी तैयारियों की हिदायत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और दरियाओं की मुसलसल निगरानी की जाए। नशेबी इलाकों को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए जाएं। हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। जुड़वां शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मैं अपना बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। अपने वालिद को बता दें, सड़क बनानी थी तो 3 बार वजीर आजम रहे, बना देते। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को जवाब। कहा, बात ऐसे करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम न रहा ना चचा वजीर आजम है। ये रायवंड को ही पंजाब समझते हैं। क्या चोलिस्तान, राजनपुर, पहाड़ी, पोटोहार का हाल देखा है? गिलगित बल्तिस्तान में मंशूर था, जीबी को लाहौर बना देंगे। 3 बार वजीर आजम रहे तब बना देते। अब भाई वजीर आजम है, अब बना दे। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो किसी और शहर को क्या बनाएंगे? कहते हैं कि पंजाब के सके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? बिलावल भुट्टो के पंजाब के शहरों की हालत जार पर सवालात। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियोस लगाकर जवाब दे दिया। कहा, मुजफ्फराबाद के जलसे ने साबित कर दिया कि कश्मीर नवाज शरीफ का है। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत कश्मीर में पंजाब मॉडल की तर्ज की तरक्की होगी। मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास रावलपिंडी डिवीजन की 4 नशिस्तों के लिए कायम पोलिंग स्टेशन की सतह तक तैयारियों का जायजा लिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सरमायाकारी, महारतों के फरोग, माहौलियात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई गईं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तालिबात को मुफ्त स्कूटीज फराहम की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर कर रही है। कराची में मुबैना मुकाबले में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलविस 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में तीनों मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में रकम छीनने के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, अब होर्मुज़ में एक जहाज पर हमला हुआ तो ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। तेहरान के आसपास भी पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो अमेरिका के इत्तेहादियों की बिजली काट देंगे। ईरान का ऐलान। कहा, जो लोग जारहियत में हिस्सा लेंगे उन्हें भी जायज हदफ समझा जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमरीकी सदर की धमकियां सिर्फ खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेंगी। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि अमरीका ने धमकियों पर अमल किया तो खलीज से तेल की तरसील को रोक दिया जाएगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,74,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग -B से B हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से रेटिंग बेहतर हुई। माली साल 2027 में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.5% मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेटिंग का खैर मकदम, कहा मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज आलमी सतह पर तस्लीम किए जा रहे हैं। सलामती काउंसिल में भारतीय बयान पर पाकिस्तान का मौसर जवाब, कहा भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। भारत का ये अमल इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बन सकता है। आसाम पर सैलाब का वार, बस्तियां डूब गईं, हजारों खानदान नकले मकानी पर मजबूर। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू टीम्स कश्तियों के जरिए महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। फ़ज़ाई शोबे में पाकिस्तान का तारीखी संगमील, पहली बार यूरोपीय मेयार का MRO सेंटर, जदीद फ्लाइट सिम्युलेटर और मेंटेनेंस हैंगर भी कायम होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जदीद तैयारा, मेंटेनेंस हैंगर और फ्लाइट सिम्युलेटर कायम किया जा रहा है। तुर्की के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवा के बाइस फैलने वाली आग ने मुतादिद मकानात को भी लपेट में ले लिया। हेलीकॉप्टर्स और जहाजों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। सिरी में शदीद बर्फानी तूफान के दौरान लापता होने वाले 3 हाइकर्स को 6 दिन बाद जिंदा ढूंढ लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने इंतहाई खराब मौसम, बर्फ से ढके दुश्वार गुजार रास्तों और मुसलसल खतरात के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी रखा। हुकाम के मुताबिक तीनों शदीद सर्दी और थकन का शिकार थे। अमरीकी लीग में मेसी की टीम की पहली कामयाबी। इंटर मियामी ने शिकागो की टीम को 3-2 से हरा दिया। मेसी, एम्बापे, अर्लिंग हॉलैंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। मिडफील्ड में स्पेन के कप्तान और गोल्डन बॉल के फतेह रोड्री जगह बनाने में कामयाब। जॉर्ज बेलिंगम और फ्रांस के माइकल ओलिसे भी टीम का हिस्सा। केप वर्दे के गोलकीपर वज़ेना, अर्जेंटाइन के मार्टिनेज भी टीम में शामिल। फीफा वर्ल्ड कप में डॉलर्स की बरसात, मेगा इवेंट में 15 अरब डॉलर्स की आमदनी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक आमदन हदफ से 4 अरब डॉलर ज्यादा रही। वर्ल्ड कप 2022 में 8 अरब डॉलर के करीब आमदन हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज से आगाज। अरशद नदीम एजाज का दिफा करेंगे। दुनिया भर से एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तान का दस्ता भी मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत करेगा। कौमी हीरो अरशद नदीम जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ग्लासगो में मेगा इवेंट में 2 अगस्त तक जारी रहेगा। दोस्तों को दुबई बुलाएं और 2.25 लाख रुपए का फायदा उठाएं। दुबई ने सयाहत के लिए नया मंसूबा मुतारिफ करा दिया। दुबई के रिहायशियों को फैमिली और दोस्तों को बुलाने पर 3000 दिरहम की रियायतें मिलेंगी। 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक ऑफर रहेगी। होटल में क़याम, तफरीही मकामात के टिकट समेत दीगर मराहत पर 3000 दिरहम रियायत मिलेगी। सुआत में आड़ू की फसल तैयार, बागात रसीले फलों से भर गए। बहरीन और कालाम जाने वाले सयाहों ने बागात का रुख कर लिया। ताज़ा फलों के साथ हसीन